everyone. Welcome to the Medical Aid Society podcast for Naegleria Prevention and Naegleria Control. With us, we have Honorable Dr. Ambreen Akhtar. She is all the way. She has come here all the way from Canada. Ma'am has been graduate of RMU, the then RMC. She has also served as the medical officer at Holy Family Hospital and is the first person who started the medical ICU at the Holy Family Hospital. After that, she went for specialization in France from Bordeaux University. She specialized in intensive care medicine from France and then came back and worked as the medicine specialist, PG trainee, and internal medicine specialist at the Polyclinic Hospital. In 2015, ma'am went to Canada and worked as a special project coordinator at Dana Care. She also worked at epidemics prevention and control specialist with Canadian Red Cross. Ma'am has also served as the CEO of Canadian College for Healthcare Pharmaceuticals, and currently she is the lead at Prevention and International Prevention and Care. Action. Thank you so much for joining us, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, Haris, for introducing me. So my current role is as an infection prevention and control lead health with the City of Toronto. Yes. Ma'am, before we start with the proceedings of Naegleria, थोड़ा सा आप हमें बताना चाहेंगी कि why did you became a doctor and why this field? Why the field of epidemiology? Like हमारे साथ बच्चे होते हैं वो सर्जन बनना चाहते हैं, मेडिसिन स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं. Why did you choose internal medicine and why then epidemiology? What was your drive? Thank you so much, Haris. So जो डॉक्टर बनने की चीज है ना, वो जो लोग कहते हैं कि बचपन से शौक था, तो मेरे केस में वो ये सिर्फ बात नहीं है, ये फैक्ट है, क्योंकि I never thought of anything else except becoming doctor. Never in my life. Since मेरी जो मेमोरी है कि मुझे क्या ये बन जाओ वो बन जाओ, but I never thought about it कि except being a doctor. इसके अलावा although मेरी फैमिली में आज तक I'm the first doctor in my whole extended family, not on my parents side, not on my mom's side. My father जो है, मेरे फादर आर्मी में थे एज इंजीनियर, और हम लोग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मूव करते थे. आर्मी में तो आप किसी जगह पे एक जगह 3 साल से ज्यादा नहीं रहते हो. तो आई डिड माई स्कूलिंग एंड माई कॉलेज फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स इन ऑल ओवर पाकिस्तान. एक्चुअली मेरी जो FSC है वो कोहाट से है, वहाँ पे PF कॉलेज कोहाट से. फर्स्ट ईयर मैंने PF कॉलेज इस्लामाबाद से किया, फिर पोस्टिंग होगी. सेकेंड ईयर PF कॉलेज कोहाट से किया. तो वहां से तो मेरी जो फर्स्ट 2-3 years थे वो my parents were in Kohat and I was in Rawalpindi Medical College. So you can say that it was always my dream. I never thought of becoming anything else other than doctor. So जब मैं I was in RMC, so I started जो RM medical जब खत्म हुआ तो उसके बाद I joined did my house job in Rawalpindi. Now it's a Benazir Shahid Hospital. And from there I did my house job, and after that I started working as a medical officer soon after, while I was preparing for my FCPS. उस वक्त जो पहली बात होती है अपने FCPS करना और ये वो, तो उसकी तैयारी के दौरान I was working at the same time as a medical officer within the Holy Family Hospital actually. So उसके बाद while working I realized that one thing जो मुझे हमेशा अट्रैक्ट करती थी, I always loved intensive medicine. So मेरी जितनी भी positions रही हैं वो always in intensive medicine. मैं ultimately जब earthquake हुआ उस वक्त भी I was working in intensive medicine और चीजों को लर्न करना समझना. तो when earthquake hit तो होली फैमिली में बिल्डिंग तो बन गई थी जो अभी हमारी बिल्डिंग है, लेकिन उसमें कोई वेंटिलेटर पे कभी भी किसी को नहीं डाला गया था अभी तक. सो व्हेन earthquake hit तो हम लोग तो वहाँ इतने दिन रहे और इतने पेशेंट्स देखे जो कि जिनको वेंटिलेटर की जरूरत थी. एंड देन आई वाज द फर्स्ट वन, बिकॉज उन दिनों में कुछ आए हुए थे अमेरिका से, इधर से भी, तो they taught me a lot during that time, and I was the first one to put a patient on ventilator in medical ICU on Holy Family actually. So during that process it continued, and my love for intensive medicine grew, and I
then I went to France to do my specialization. उन दिनों में एक प्रोग्राम चल रहा था विद गवर्नमेंट के साथ कि यहाँ से ट्रेनिंग के लिए जाते थे, क्योंकि उस वक्त आईसीयू में शायद ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं थी इस तरह स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग पाकिस्तान में। अब तो आई थिंक है। तो दैट्स वेयर आई वेंट टू फ्रांस। उसके लिए मुझे फ्रेंच भी, आई लर्न फ्रेंच एक्चुअली, एंड आई वेंट टू फ्रांस एंड I did my training there for 2 years, and when I came back, I joined Polyclinic and started the ICU there and work. And at the same time, I was completing my PG training in internal medicine. So dono cheez at the same time. So, but one thing I always realized that आपका next question के how you became interested toward epidemiology and all that stuff. I'm always into that. If you look at while working in a polyclinic, normally हम लोग नहीं तो एक दफा डायरिया की केसेस आना शुरू हुए. So I wanted to know why that suddenly the diarrhea number increased. So I started, me with my house officer, while working, we started a small project on our own. We don't have money and anything, you know. My house officer, I still remember him, and I wrote an article and wrote his name too with it. कि हम लोग खुद पेशेंट के स्टूल सैंपल लेके ना एनआईएच में जाते थे और वहां पे जाके डिलीवर करते थे खुद अपनी गाड़ी में कि पता चले, बिकॉज यू डोंट हैव रिसोर्सेज इन पाकिस्तान टू फाइंड आउट द cause why the people are coming with it. It was cholera actually, and we were giving the antibiotic with to which that cholera was resistant. That's why patients were not improving. So when we got that result, I brought it to my, so it was just to know the exact cause. So wahan se I started developing. It's very interesting to know the root cause of thing. And second thing जो आपको मैं बताऊं कि जो the highest जिसमें prognosis अच्छा होता है ना, mostly it's treatable infections which have the most better prognosis if they are treated in a right way. So while in ICU, I have seen people who came with a coma score of like, they're totally unconscious and they went home by walking just because they were suffering from some infectious disease, which was treated timely. And so from there, my love for infectious disease and started working toward that. But when I landed in Canada, most of you know that it's a place where doctors don't get a lot of chances to get into residency. But when I came with the idea that I might not go toward the residency. I'll change my field. So I worked in different positions with Ontario Public Health and all that, with DynaCare, and worked with the people hepatitis C HIV prevention program. I did it here in Toronto. And when the pandemic hit, when the pandemic hit, so I joined Canadian Red Cross. So I traveled with Canadian Red Cross all across Canada to help control the outbreaks and all that stuff. So from there, my passion for infection prevention and control rose more, and I did my board certification in this particular subject. And here I am sitting in front of you as infection prevention and control specialist, starting from intensivist and becoming infection prevention and control specialist. Throughout the way, I did lots of research articles. I missed few of things which I did not miss. I did my clinical research associate program from York University in here. So it's not like that thing continued. I always want to learn more and more. Wow, मैम दैट्स अमेजिंग. एंड साथ ये भी बताती चलें कि साथ आपका जो वेलफेयर से जो आपका रिलेशन रहा है इतना, एज अ रेवलियन यू आर अ मेसियन, यू आर ब्लड सेक्शन इंचार्ज, लेटर ऑन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकोरिया सोसाइटी, फिर आपने कैनेडियन रेड क्रॉस के साथ आपने ज्वाइन कर लिया, और दरमियान में आपने जो बताया कि एनआईएच तक, होली फैमिली एमएच, जो लोग नहीं जानते तो मैं बता दूं कि इट्स नॉट ट्रैवल एटलीस्ट चेक शहजाद से भी आगे जाके आता है. तो व्हाट was your drive for that? कोई ऐसी एडवाइस थी आपको पेरेंट्स की तरफ से, या बिल्कुल ही आपके दिल में इंसानियत की थी? No, एमएस के साथ हम लोगों का बहुत, मेरा तो लाइक यू कैन से दैट आपको, आई डोंट नो यू नो द हिस्ट्री के एमएस खत्म हो गई थी बीच में. when there was a one time there was a flood. It is, I'm talking about जिसमें there were two organization in Rawalpindi Medical College.
One was MAS and one was SFPP. I don't know, have you ever heard of that or no? No, man. No. So there were two Yeah. organization. So what happened was, I totally forgot which year it was, but उसमें फ्लड था, बहुत ज्यादा फ्लडिंग हुई थी, और हमारी जो पुरानी बिल्डिंग है उसकी बेसमेंट में हमारा ऑफिस था, तो वो पूरी बेसमेंट वाज फिल्ड विद द वाटर. सो एवरीथिंग, हम लोगों के इवन रिकॉर्ड भी डिस्ट्रॉय हो गया था, और एवरीथिंग, SFPP का ऑफिस भी उधर था, हमारा भी उधर था. तो क्या हुआ कि वो तो लाइक एवरीथिंग गॉट डिस्ट्रॉयड, ऑल द रिकॉर्ड, मेडिसिन, एवरीथिंग. अभी भी आई थिंक वहीं पे ऑफिस है आप लोगों का, पुरानी बिल्डिंग. मैम अब जो हमारा नया ऑफिस है वो तो RMU ऑडिटोरियम में है, अंदर जाके लेफ्ट साइड पे फ्रंट में ही है इसके. ओके, नहीं हम उस वक्त बेसमेंट में था. तो उसमें ये हुआ कि हमारा सब कुछ डिस्ट्रॉय, एवरीथिंग फिनिश, नथिंग वाज लेफ्ट. इट वाज यू व्हेन जब उन्होंने पानी को वहां से निकाला, तकरीबन 2 3 4 हफ्तों के बाद, आप यकीन करें कि MS के दीवारों पे सब वो मड था, मड. इट वाज मड, ओनली मड. एंड आई रिमेम्बर वी यूज्ड टू क्लीन द फ्लोर, क्लीन द वॉल्स. हाथों से हमने वो मड निकाली, क्योंकि लाइक कॉलेज ने उस तरह में वो नहीं प्रोवाइड किया कि इसको उस पूरे फर्नीचर को नया खरीदना और सारी चीजों को दोबारा लेकर आना. तो यू कैन से दैट ड्यूरिंग दैट टाइम इट वाज द रीबर्थ ऑफ MAS. सो हमने जब MAS, आपको ये भी बता दूं कि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है थी समन, उसने हमें हेल्प किया था. जो हमारा पहला कंप्यूटर आया था उसके फादर ने, तो वो भी हमारे टाइम में आया था, और ये सब चीजें बहुत सी हुई थी. और उसके बाद SFPP खत्म हो गई थी, बिकॉज उनके पास उस तरह के पैशनेट लोग नहीं थे. तो हमारे वाले ग्रुप में पैशनेट लोग थे, हमने इसको सरवाइव करवाया. बहुत सी चीजें हुई, लाइक आई स्टिल कि ये जो स्टोरी शुरू हुई थी 3rd ईयर में शुरू हुई थी, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू हेल्प पीपल, एंड वी हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल. तो उसका मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे याद है कि यू आर डूइंग समथिंग राइट, बिकॉज एक दिन मैं एयरपोर्ट पे, जब मैं कनाडा आ रही थी, तो एक खातून आई दूर से भागती हुई आके ना, मेरी अम्मी के पाँव उन्होंने छुए. तो आई वाज लाइक अमेज कि ये कौन. देन आई सडनली रियलाइज कि वो थैलेसीमिया के माँ की, बच्चे की माँ थी, जिसको हमने इतनी दफा ब्लड प्रोवाइड किया था, और उस खातून ने मेरी अम्मी को कहा कि अल्लाह ताला ने आपको इस तरह की बेटी दी है. देन आई रियलाइज दैट वट एवर वी हैव डन थ्रू आउट, इट हैज चेंज एंड मेंट सो मच फॉर द पीपल. तो उस दिन जब मैं पाकिस्तान छोड़ी थी, तो उस दिन भी आप देखो कि MS की वजह से my mom felt my mother felt so proud that I have done. तो मेरी अम्मी की आंखों में आंसू मैंने उस दिन देखे थे, और the pride that she felt in her just because of MS actually. Wow, thank you so much. Those are really inspiring words for us. हम लोगों के लिए भी हम दुआ करें कि हम आप जैसा पैशन ही कंटिन्यू कर सकें मेडिकल सोसाइटी में. तो मैम अब थोड़ा सा हम चलते हैं नेग्लेरिया की तरफ. अगर आप बताना चाहें कि व्हाट इज नेग्लेरिया, लाइक एक लेमैन को हम क्या एक्सप्लेन करें कि नेग्लेरिया क्या होता है, मेरे से अगर कोई पूछे तो हाउ डू आई डू इट. तो निग्लेरिया एक ऐसी इन्फेक्शन होता है, जो एक चीज होती है अमीबा. अमीबा इसको कहते हैं, जिसकी वजह से कई दफा आपका पेट भी खराब हो जाता है. अमीबा की वजह से एक इस तरह का एक जरसूमा है, जो कि बहुत छोटा है, और वो आपको आंख से नजर नहीं आता, बल्कि वो सिर्फ माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगल सेल्ड अमीबा है. और इसको एक इसका जो आम जो इसको इस्तेमाल किया जाता है, ब्रेन ईटिंग अमीबा इसको कहा जाता है. ब्रेन ईटिंग अमीबा, कि ये आपके जब आपकी बॉडी में एंटर होता है थ्रू आपकी नाक के जरिए, और ये वहां से डायरेक्टली ट्रेवल करता है आपके दिमाग में. आपकी यहाँ पे एक नर्व होती है, नाक के पीछे olfactory नर्व, उसके थ्रू ये ट्रेवल करता है और वो ब्रेन में जाता है, और इट स्टार्ट रेप्लिकेटिंग, और वो वहां पे उसको कहते हैं प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस, पैम. वो कॉज करता है आपके ब्रेन में. तो ये आप ये कहें कि एक जरसूमा है, जो कि जिंदा चीज है, लेकिन वो सिंगल सेल्ड अमीबा इसको कहेंगे, और ये पानी से आपके नाक के थ्रू आपके दिमाग के अंदर पहुंचता है. तो बाकी आगे क्या है, वो मैं आगे आपके अगले सवाल के जवाब में दूंगी कि कहाँ रहता है और कैसे वो करता है. डेफिनेटली मैम. तो आई गेस आपको नेचुरली आपको पता चल ही गया कि हमारा अगला क्वेश्चन यही है. गेस दैट
इतना जो प्रैक्टिस किया आपने, that really pays off, I guess. So yes ma'am, definitely that was our next question कि रूट क्या होता है मैम इसका, and how does it, where does it reside, and how do patients get infected by it? तो मैं उर्दू में इसलिए बात करूंगी ताकि अगर आपका प्रोग्राम कोई आम बंदा जो इंग्लिश नहीं Yes, समझता वो देख रहा है। तो जो अमीबा ये जो होता है निग्लेरिया, ये जो अमीबा है ये रहता है पानी के अंदर, लेकिन इसके जो सोर्स है फ्रेश वाटर, इसका जो सोर्स होता है पॉन्ड्स, जो झीलें जिधर आप स्विमिंग करने जाते हो, लेक्स के अंदर, रिवर्स के अंदर, और इसमें ये ग्रो करता है। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो ये घरों की टंकियों में या अस्पतालों की टंकियों में, टैंकर्स के अंदर, जो हमारी टंकियां गवर्नमेंट की तरफ से बनी होती हैं उनके अंदर, और ये पानी के पाइप्स के अंदर, इसमें भी ग्रो कर सकता है और रहता है अगर उसको प्रॉपरली डिसइंफेक्ट ना किया जाए। इसकी जो ग्रो जब ये करता है, इसको ग्रोथ के लिए एक स्पेशल एनवायरनमेंट चाहिए होती है, इसको गर्म पानी चाहिए होता है, ये ठंडे पानी में ग्रो नहीं करता। तो क्या होता है कि जब गर्मियों के अंदर जब टेम्परेचर आपका कॉन्स्टेंटली फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे अरसे के लिए एक हाई टेम्परेचर रहता है, तो पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो दैट उस एनवायरनमेंट के अंदर ये सबसे बेस्ट ग्रो करता है। 40 लाइक एनीथिंग अराउंड 35 to 46 तक ये बेस्ट सरवाइव करता है, अगर पानी का टेम्परेचर इतना आपकी इतना रहे ना पानी का, तो टेम्परेचर उसमें ये ग्रो करता है। और उसके बाद क्या होता है कि अगर आप उस पानी से को नाक में डालें या उस पानी में स्विम करें, जैसे अगर वही पानी स्विमिंग पूल में गया है, या वही पानी अगर आप किसी पॉन्ड में या किसी झील में आप तैर रहे हैं और वो पानी आप नाक के जरिए अंदर लेके जाते हैं, ये मुंह से नहीं जाता, ये आपको समझनी चाहिए, ये नाक के जरिए जाता है। जब आप नाक में वो पानी जाएगा तो वहां से olfactory नर्व होती है पीछे, जो वहां से वो ब्रेन की तरफ जाता है। तो ये इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन है। जो ये ये पानी पीने से ये नहीं होता, ये आपके नाक में पानी जाना चाहिए और नाक से ये ब्रेन में जाता है और वहां पे ये फिर ग्रो करना शुरू कर देता है। तो इसका आप जो आसान लफ्जों में ये कहूंगी कि ये झीलों में, दरियाओं में, पॉन्ड जो पानी इकट्ठा हो जाता है एक जगह पे बारिश के बाद, या उसमें, या जो टैंक्स होते हैं, टैंकर अंडरग्राउंड टैंकर्स होते हैं, अगर उसको प्रॉपरली क्लीन नहीं किया गया, या पाइप्स के अंदर ये, और अस्पतालों और बिल्डिंग के टैंक्स में, ये कहीं भी ग्रो कर सकता है अगर प्रॉपरली डिसइंफेक्शन नहीं की हुई। और और उसी पानी से आपने अपने नाक में डाला। हमारे सेटअप में हम बहुत वजू करते हैं, Yes, ma'am. तो जब हम नाक में डालते हैं, अगर आप ये कहो कि स्विमिंग तो हर कोई नहीं करता लेकिन वजू तो हर घर में होता है, तो अगर वही पानी आप जिसमें ये इन्फेक्शन है उससे नाक में डालेंगे तो उससे बहुत चांसेस हैं कि आपको ये इन्फेक्शन हो सकती है। तो मैम इसके पर इफेक्ट्स किस तरह से, मतलब व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं इसके एक पेशेंट में, कि हम कहें कि अभी निगलेरिया के चांस, वी शुड गेट इंटरेस्टेड फॉर निगलेरिया? उसमें सबसे पहले ये होता है कि आपकी थोड़ी सी सेंस ऑफ स्मेल जाती है, क्योंकि आपकी olfactory नर्व इन्वॉल्व है। आपको सवेयर हेडेक शुरू हो जाता है, जो भी मेनिंगोएंसेफेलाइटिस के जो सिम्टम्स होते हैं ना, बुखार होना, सर में दर्द होना, थकावट होना, ब्लरी विजन होना, और सर के अंदर शदीद दर्द होना, बाद में बंदे की थोड़ी सी कॉन्शियस लेवल भी नीचे जाना, नेक की स्टिफनेस होना, जो भी इंसेफेलाइटिस और मेनिंगोएंसेफेलाइटिस के साइन एंड सिम्टम है वो इसके साथ आते हैं। लेकिन शुरू ये बुखार, आपके नाक की स्मेल, वो ना, सर में दर्द होने से होता है। अच्छा, तो मैम इसकी जो है ट्रीटमेंट किस तरह से, फिर पेशेंट को हाउ शुड वी मैनेज एज अ डॉक्टर्स? देखिए, सबसे पहले तो आप ये आजकल का सीजन जो पाकिस्तान में गर्मियों का सीजन है और हाई टेम्परेचर्स हैं, तो उसमें सबसे पहले अगर आपके पास कोई पेशेंट इस तरह आता है तो हम कई दफ़ा इस चीज़ की तरफ नज़र नहीं दौड़ाते कि दैट कैन बी द कॉज। कि अगर कोई पर्सन आ रहा है कि जी मुझे खुशबू सही नहीं आ रही, किसी ने सिम्टम बताया, तो फौरन उसको डिटेक्ट करना इज द फर्स्ट थिंग, कि आप उसकी तरफ सोचें कि इट्स कैन नॉट बी सिंपल बैक्टीरियल और वायरल इंसेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस, इट कैन बी समथिंग एल्स। क्योंकि आप ट्रीटमेंट शायद वायरल इंसेफेलाइटिस और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की कर रहे हो, लेकिन ये कोई और चीज़ है, अमीबिक प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएंसेफेलाइटिस, इसको पैम कहते हैं।
तो इसकी ट्रीटमेंट, एज मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी फर्टेलिटी इज वेरी हाई, मोर्टेलिटी रेट है इसका 95 to 100% ऑलमोस्ट, इवन विद द ट्रीटमेंट। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है उसमें कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स यूज होती हैं, जिसमें मल्टीपल ड्रग्स का नाम है, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि पाकिस्तान में कौन सी कम्बिनेशन यूज करें। एम्फोटेरिसिन बी, एजिथ्रोमाइसिन, रेफेम्पासिन, फ्लूकोनाजोल, डेक्सामेथासोन, इन सब का नाम आ रहा है, जो कि कम्बिनेशन में, डिफरेंट कम्बिनेशन में ट्रीटमेंट किया जाएगा। गुड थिंग इज कि इनमें से कुछ ऐसी मेडिकेशन है जैसे रिफेम्पासिन और एजिथ्रोमाइसिन, ये हमारी टीबी की दवाइयों के लिए भी यूज होती हैं तो पाकिस्तान में। और फ्लूकोनाजोल तो एंटी फंगल है, एम्फोटेरिसिन बी भी। और डेक्सामेथासोन आपके ब्रेन के प्रेशर को कम करने के लिए। तो बाकी ट्रीटमेंट, और एक तो ये ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट है, इसके अलावा जो ट्रीटमेंट होती है एक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस के पेशेंट की, वो ट्रीटमेंट भी साथ साथ जारी रहती है, अलॉन्ग विद हाई, क्योंकि इसमें प्रेशर इंक्रीज होगा ब्रेन के अंदर, वो बाकी चीजें जो ट्रीटमेंट है वो तो साथ साथ चलेंगी। मैम, इससे शुड बी बी अफ्रेड ऑफ इट एज मच एज वी वर अफ्रेड ऑफ कोविड? जिस तरह वो पूरी दुनिया में फैल गया है, इसका खुदा ना खास्ता से कोई चांस है या नहीं? देखिए, इसकी जो कोविड का इशू ये था कि कोविड एक बंदे से दूसरे बंदे को जाता है, इसमें ठीक है। अगर आप यू आर सिटिंग इन अ क्लोज इन्वायरमेंट, 15 मिनट भी आप किसी के पास 2 मीटर से कम डिस्टेंस में हो और आपने वो हवा को इनहेल किया है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, तो उससे आपको हो जाता है। लेकिन इसके केस में ये नहीं है। इसके केस में ये आप एक बंदे को इस तरह आप बैठे रहो, उससे बात करो, तो उस तरह नहीं फैलता ये। तो ये उस तरह उसके फैलने के चांसेस कम है। इसके लिए सोर्स कंट्रोल, इसको कहते हैं, सोर्स कंट्रोल किया जाए कि कहाँ से ये आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एरिया के अंदर एक भी केस आया है तो उसका सोर्स ढूंढना पड़ेगा, उसने कौन सा पानी यूज किया है, कोई कहाँ से उसका पानी आ रहा है, उस पानी की टेस्ट किया जाए। अगर किसी जगह स्विमिंग किया, उस पानी को चेक किया जाए, लाइक। और बाकी लोगों को स्पेशली हिदायत दी जाए। और इससे बचने का तरीका बहुत आसान है। कोविड ये था कि कोविड में तो आप लोगों में भी नहीं मिल सकते ना, इसमें आपके पास बहुत ज्यादा लेवरेज है कि आप इसको बड़े आराम से अपने आप को बचा सकते हो इसकी इन्फेक्शन से। तो उसमें बचाने के क्या तरीके हैं? सबसे पहले जो है कि वाटर को, क्लोरीन क्लोरीन की एक टैबलेट, आई थिंक, आई डोंट नो पाकिस्तान में इसकी भी कितनी कीमत है। क्लोरीन जी, क्लोरीन की एक टैबलेट आपने, सॉरी, कुछ मैम, आई वाज सेइंग यस, अफर्मेटिव। तो क्लोरीन की टैबलेट आई थिंक कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है पाकिस्तान में इस वक्त। तो क्लोरीन की एक गोली जो है वो 1000 गैलन ऑफ वाटर के टैंक में आप डाल दें, तो इट विल किल विद इन 20 to 25 मिनट, ठीक है। अगर आपके पास क्लोरीन नहीं अवेलेबल तो पानी को उबालें। पानी को उबालने का मतलब है ये नहीं कि जस्ट यूं ही उबाल है तो बस खत्म कर दें, उसको उबलने दें, सही तरह से उबलने दें 5 to 10 मिनट। तो उसके बाद उसको ठंडा करके इस्तेमाल करें। इसके अलावा फिल्टर्स, प्रॉपर फिल्टर अगर सिटी की तरफ से यूज हो, ये फिल्टर हो जाता है, क्योंकि अमीबा बैक्टीरिया की ये, आल्दो दे आर डैमेजिंग, बट इनका ये होता है कि ये फिल्टर से फिल्टर हो जाते हैं। अगर घर में आपके फिल्टर लगा हुआ है, अगर जो सिटी से पानी आ रहा है वो फिल्टर होके आ रहा है, तो इट्स इजीली कैन बी कंट्रोल। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे ये कंट्रोल नहीं, जैसे समंदर में तो ये नहीं फैलता, लेकिन लेक में, झीलों में, पॉन्ड में पानी खड़ा है और आप उसमें नहा रहे हैं, और तो उसको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि आप जब स्विमिंग करते हो तो आप इनहेल कर लेते हो वो पानी। तो जो है, और इवन अगर आप स्विमिंग पूल में भी जा रहे हो, इस टाइम के ऊपर ये कहना कि स्विम ना करें, ये थोड़ा सा वो होता है कि लोग, भाई अगर गर्मी है तो हमने कुछ तो करना है। तो कई दफा आपको ये चीजें देखनी है कि अगर इस वक्त एक टाइम पीरियड आया हुआ है जिसमें ये फैला हुआ है, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप अपने आप को प्रिवेंट करें उन स्विमिंग करने से और इस तरह की चीजें। और घर के अंदर जो पानी आ रहा है वो तो आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जो पानी लेक्स में है वो, या पॉन्ड में है, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मैम, फ्लडिंग्स हमारे पाकिस्तान में भी रिचनेट काफी ज्यादा हुई थी, तो फ्लडिंग से पहले तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं था देखा। लाइक नगलेरिया का कभी सुना भी सॉरी, था आपने क्या हमने। कहा, क्या हुआ था?
पाकिस्तान में फ्लडिंग फ्लडिंग्स काफी फ्लड। सारी। तो हाँ फ्लडिंग जी, से फ्लड। पहले हमने ऐसा कुछ भी नहीं था, ना कभी देखा था, ना इवन बचपन से कभी सुना था। तो डू यू थिंक दैट माई हैव सम रिलेशन टू इट? ये सम, क्योंकि ये होता है कि जब फ्लडिंग से ना जगह जगह पानी खड़ा हो जाता है। जब पानी खड़ा होता है तो इट हैज द, और ऊपर से गर्मी हो तो उसमें हायर चांसेस हैं कि वो उसमें ये ग्रो करेगा। तो फिर वो लोग उस पानी में नहाएं या ये वो, और उसके बाद हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हमारा जो पानी का फिल्ट्रेशन सिस्टम है वो इतना अच्छा है नहीं। तो वही पानी मिक्स अप होता है जो जो वाटर घरों में आ रहा है, जो स्विमिंग पूल्स में आ रहा है, जो तो उसकी वजह से वो स्प्रेड कर सकता है थ्रू पाइप्स। तो अभी तक जो मैंने जो सर्च किया, अभी तक 5 केसेस हैं, 5 डेथ्स हुई हैं क्या पाकिस्तान के अंदर। मई के से में ये पहला शायद केस डिटेक्ट हुआ था, मई में, हाँ। यस इफ मैम। आई एम नॉट, क्योंकि मैं जब मई में केस डिटेक्ट हुआ था, और अभी तक 5 डेथ्स हुई हैं। तो जो एक जो जो उनमें से कुछ लोगों की डेथ्स जिनकी हुई हैं, उन्होंने स्विमिंग नहीं की, उन्होंने पानी यूज किया घर के अंदर। तो इट मीन्स के वो घर के पाइप से अगर उन्होंने नाक में डाला है ये वो, तो उससे उनको हुआ है। लेकिन इट इज क्वाइट लाइकली के जो फ्लडिंग हुई है, फ्लडिंग पिछले साल हुई थी, इट्स अनलाइकली कि वो फ्लडिंग वाला पानी उस पॉन्ड में अभी तक, क्योंकि बीच में सर्दियों का सीजन आया है। तो फ्लडिंग इस साल हुई है, पिछले साल हुई है, पिछले मुझे साल, यस टोटली मैम, पिछले पिछले साल, साल। हाँ। तो इसमें लेकिन ये है कि अगर वो जो वाटर है वो सीप इन किया है किसी सिटी के, सॉरी अबाउट दैट। नो इश्यूज, नो इश्यूज एट ऑल। तो मेरा मेरा जो कंप्यूटर है ना वो मेरे फोन से अटैच्ड है, तो इस वजह से कई दफा फोन पे भी कॉल मेरे कंप्यूटर पे आ रही थी। तो ये करना पड़ता है जब आप, यू आर अ मॉम ऑफ 2 किड्स, वरना आपको बीच में पता नहीं चलता कि somebody is calling you। सो ये है कि फ्लडिंग से ये हो सकता है कि जो पानी इन्फेक्टेड था वो हमारे सिटी के सिस्टम में सीप इन किया है, और वहां से वो कंटिन्यू टू ग्रो फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। क्योंकि इसके लिए एक खास टेम्परेचर चाहिए इस अमीबा को ग्रो करने के लिए। अगर वो टेम्परेचर नहीं है तो ये, मैंने आपको बताया कि 35 to 46 47 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे ये ग्रो करता है। और ये दैट इज द टाइम पीरियड विच इट नीड। और जब वो टाइम पीरियड, वो वाला टेम्परेचर पानी में होगा तो ये ग्रो करेगा ये, और मॉइस्ट सॉइल में भी ये ग्रो करता है। कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो पानी तो चला गया वहां से, लेकिन वो जमीन जो है वो मॉइस्ट रही और वहां पे इसने ग्रो किया और वो सीपन किया। सो देर इज ए पॉसिबिलिटी कि दैट कैन बी वन ऑफ द फैक्टर। मैम, मेरे साथ मेरे सीनियर हैं और मेडिकल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन सेक्शन इंचार्ज हैं, अब्दुल्ला भाई। वो भी हमारे साथ डिस्कशन में कुछ क्वेश्चंस आपसे करना चाहते हैं। अब्दुल्ला भाई, प्लीज कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अब्दुल्ला। हाउ आर यू मैम? Alhamdulillah, I'm good. How are you? You are in fourth year? एग्जैक्टली, फोर्थ ईयर। Okay. ओके मैम, सबसे पहले मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूँ कि मैम आपने अपनी बिजी रूटीन से टाइम निकाला और हमारी इस फर्स्ट एवर ऑनलाइन पॉडकास्ट के लिए आपने साइन अप किया। सो यू आर द फर्स्ट पर्सन आल्सो फॉर द Oh, wow. एमएसएस जहाँ पे आप फर्स्ट टाइम ऑनलाइन पॉडकास्ट हम कर रहे हैं। सो That's इट्स awesome. एक और टाइटल आपको मिल गया है फ्रॉम द टाइटल्स। और आपकी जितनी डिस्कशन थी और एमएस के लिए जितना पैशन था, हमारे जूनियर्स हमारे साथ जो काम कर रहे होते हैं और हम भी इन्फेक्ट होते हैं, तो हमें और इंस्पिरेशन मिलती है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी की दुआ कहीं ना कहीं आपको लग जरूर जरूर जाती है। Oh, और बिल्कुल। ये चीज़ हमें अगर कोई चीज़ मुश्किल भी आ रही हो तो वो हमें बिल्कुल नहीं रोकती, बल्कि हमें और मोटिवेट करती है, स्पेशली आप जैसे सीनियर्स को देख के, कि हम इस चीज़ को आगे कंटिन्यू रखें, और ना सिर्फ कंटिन्यू रखें बल्कि आगे ट्रांसफ़र भी करें इस चीज़ को। बिल्कुल। तो डेफिनेटली। मैम, ये आप अपने कभी साथ आप रखिए, जो कि ये एमएस से जो आप सीखोगे और जो आपने किया होगा, इट विल स्टे विद यू द होल लाइफ, एंड इट विल बेनिफिट यू एक्चुअली। डेफिनेटली डेफिनेटली मैम, और मैम कभी आपका पाकिस्तान चक्कर लगा तो आप ज़रूर ऑफिस विज़िट करने आइएगा। अब ऑफिस बहुत बेहतर हो चुका है। पहले बेसमेंट में था, एग्जैक्टली आपने बताया था। इवन वहाँ पे आज भी वो जो फ्लड लेवल
जहाँ तक मार्क होया हुआ है वो वहाँ पे बेसमेंट में मौजूद है, यहाँ तक फ्लड आया था वाटर लेवल। तो हम्म। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस शिफ्ट हो चुका है और काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है, काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो चुकी हैं। Awesome. और हमारे पास एक एम्बुलेंस है, एक बाइक है, केसेस वगैरह जो ब्लड केसेस वगैरह होते हैं उनको सॉल्व वगैरह करने के लिए। इसके अलावा जो हमें मेडिसिन स्टोर करने के लिए न्यू लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स बने हैं, वहाँ पे 2 स्टोर रूम्स मिल चुके हैं जहाँ पे हमारी Awesome. मेडिसिन होती हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह एमएस ने बहुत प्रोग्रेस की है और अभी भी तमाम आरएमयू की सोसाइटीज़ में नंबर 1 एमएस पे ही है। अच्छा, दैट्स गुड। अभी कोई और भी सोसाइटीज है? अभी मैम 8+ सोसाइटीज़ हो चुकी हैं और ओह। 20 हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर उमर ने वहाँ पे पूरा एक विंग बनाया है सोशल वेलफेयर का, कि जहाँ पे ओनली वेलफेयर सोसाइटीज़ को वो डील करते हैं, उनको एक अलहदा विंग अलॉट कर दिया है। तो अभी तो अच्छा। काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुकी हैं, काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एमएस की सस्टेनेबिलिटी में सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो सीनियर्स का जाता है, जिनकी वजह से हम्म। सस्टेन हुई। और डेफिनेटली एक बिग कॉज थी। और मैम बाकी ये था कि निकलेरिया से रिलेटेड ये था, मैंने एक रिसेंटली एक सीजन देखा था हाउस एमडी, इफ एनी वन ऑफ हम्म। यू। सो सबसे टफ केस वहाँ पे, मतलब उनका एक एपिसोड एक केस पे होता था, एंड हम्म। इट्स अ वेरी गुड सीरीज। तो वहाँ पे निकलेरिया पे जब उन्होंने अपना एपिसोड बनाया तो वो 2 एपिसोड्स बनाए स्पेशली। हम्म। तो इट वाज अ वेरी टफ फॉर देम, कि जहाँ पे उन्होंने डिटेक्ट करना है कि एंसेफेलाइटिस हो किस वजह से और हो रहा है। तो वहाँ पे मूवी का ये सीन था कि उन्होंने उस एपिसोड में लेजिनेला को ना स्प्रेड करवाया, जहाँ पे पेशेंट को इंक्यूबेट किया था, लेजिनेला को स्प्रेड करवाया। वो जो उनका एंसेफेलाइटिस के सिम्टम्स आ रहे थे, ब्लाइंडनेस वगैरह, टेस्टलेसनेस, वो हो रही थी, ठीक, वो बिल्कुल खराब हो रही थी, तो लेजिनेला की वजह से वो चीज़ें रिवर्स होने लगी। अच्छा। फिर वहाँ फिर वहां से पता लगा कि ये अब ये कोई और पैरासाइट है, क्योंकि 2 का कंपटीशन आ चुका है, कि लेजिनेला किसी पैरासाइट को जाके ईट कर है। और वहां से उन्होंने फिर डिटेक्ट किया। तो आपने जब एम्फोटेरेसिन बी का, तो वहां पे भी ट्रीटमेंट उन्होंने एम्फोटेरेसिन बी वहां पे बताया हम्म। था। चलें, तो दैट्स रिसेंटली गुड। क्या हुआ था कि मैंने स्विमिंग करके आया था, तो अगले दिन ही गवर्नमेंट का नोटिस निकल आया कि अब निकलेरिया आ चुका है। तो अब आई ये है होप कि कि स्विमिंग पूल में वो उन्होंने क्लोरीन डाली भी होगी तो इट शुड बी ओके। मैम पब्लिक सेक्टर स्विमिंग पूल्स है, अब ये नहीं पता कि उन्होंने फ्लोरीन बाद में डाली होगी या नहीं डाली होगी। लेकिन ये है कि हम किस तरह मतलब एक आम बंदा है, अब उसको कहता है यार मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, और डेफिनेटली यहाँ पे जो मौसम है वो 42 तक चल वो जा रहा होता है। और पंजाब के जो लाहौर के नहरी इलाके हैं वहाँ पे, और वाटरफॉल्स वगैरह हैं, यहाँ पे तो मतलब सबसे ज़्यादा इस वक्त टूरिज्म पीक पे होती है, ट्रैकिंग करना, ये करना, वो करना। तो ऐसे क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम उनके लिए स्पेशली करेंगे कि वो इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकें, क्योंकि एक साइलेंट किलर है। आपका सर दर्द से कब डेथ हो जाए, क्योंकि सर दर्द हमारे लिए बहुत एक कॉमन सी चीज़ है, कि हम्म। हर कोई पैनाडोल ले लेता है, और जी सर दर्द हो रही है, पैनाडोल ले लेते हैं और अपना ओके हो जाते हैं। बट ये कैसे पता लगेगा कि ये सर दर्द आपकी कल को जान भी ले सकता है। ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स उनके लिए जो टूरिस्ट स्पेशली हैं जो आ रहे हैं, और जो एक आम बंदा है जिसको ये नहीं समझ आ रही कि वो कैसे इस चीज़ का हल करे या क्या करे, आप उसके लिए क्या सजेस्ट करती हैं कि क्या एडवाइस होनी चाहिए? देखिए, जो निगलेरिया का सर दर्द है ना, इट्स वेरी डिफरेंट। कि और प्लस वो बहुत फास्ट, जो आम सर दर्द होता है वो तो इतनी तेजी से डिटोरेट नहीं करता। ये बहुत तेजी से डिटोरेट करता है। तो उसका फौरन, अच्छा, हम लोग, ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो एपिडेमियोलॉजी में ना जिन डिजीजेस की फेटेलिटी रेट बहुत हाई होता है ना, जैसे कॉन्गो वायरस हो गया या इस तरह की चीजें, तो वो स्प्रेड ज्यादा नहीं करती। द रीजन बीइंग के जो पर्सन होता है जो इन्फेक्टेड होता है या कुछ, एक तो नंबर वन के वो बहुत तेजी से डिटोरेट करता है और फौरन रडार में आ जाता है ना, और उसको कर्टेल कर लिया जाता है उस एरिया को भी, और ये वो, क्योंकि इसके सिम्टम्स बहुत फास्ट स्प्रेड करते हैं। लेकिन आपका जो सवाल, बल्कि मैं आपसे बात कर रही थी तो
मैं यही सर्च कर रही थी कि क्या ऐसा कोई तरीका है कि उस लेक में स्विम किया जाए और नाक को बंद रख के स्विम किया जाए, तो कैन इट स्प्रेड प्रिवेंट, बट एग्जैक्टली उसका कोई एविडेंस बेस वो नहीं है कि अगर आप अपने नाक को बंद रखेंगे और नाक से पानी अंदर नहीं जाने दें तो यू कैन डू दैट। आई डोंट नो हाउ मच एविडेंस इज देयर कि अगर कोई बंदा स्विम करे और अपने नाक को टोटली, नाक से कोई पानी ना जाए, दैट्स द ओनली वे टू प्रिवेंट इट। बिकॉज मैंने आपसे कहा ये मुंह से नहीं जाता, ये नाक के थ्रू, पानी के थ्रू एंटर होता है आपके ब्रेन में, और विच कैन बी प्रिवेंटेड एक्चुअली वेरी इजीली। और जो घरों में है वो तो मैंने आपको बता दिया कि जो पानी आप यूज कर रहे हो मेक श्योर करें कि क्लोरीनेटेड वाटर हो। अगर आपके घर में टैंक है तो एवरी 2 वीक्स अपने उसमें ना, टैंक के आपको पता होना चाहिए कि उसकी कितनी कैपेसिटी है, तो उस हिसाब से, जैसे इतना मुझे पता है कि 1000 गैलन वाटर के लिए 1 क्लोरीन वो चाहिए होती है। सिंपल कई दफा हमारा जो इशू ये होता है कि अगर आप क्लोरीन डाल रहे हो तो यू शुड नो कि आप जो प्रोपोर्शन यूज कर रहे हो क्लोरीन की वो एडिक्वेट है या नहीं। ये सबसे कई दफा लोग अंडर अंडर क्लोरिनेशन होती है, कई दफा ओवर क्लोरिनेशन होती है। ओवर क्लोरिनेशन वी कैन डैमेज योर, लाइक आपको देगा लेकिन आल्दो वो किल तो कर देगा बग को, लेकिन वो तो आपका जो सवाल है कि क्या किया जाए, तो उसका बेस्ट यही है कि अवॉइड ड्यूरिंग दो सीजन वेयर देयर इज अ cases of Naegleria going on. The second is कि अगर आपने कहीं जाना भी है तो मेक श्योर क्योंकि पॉन्ड्स एंड इसके अंदर आप टोटली किसी से पूछ भी नहीं सकते कि इज देयर एनी केस, और स्विमिंग पूल को आप कंट्रोल कर सकते हो कि जिधर स्विमिंग पूल है क्या उसको प्रॉपरली क्लोरिनेटेड वाटर यूज किया गया है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि नाक इज द सोर्स ऑफ एंट्री इन योर बॉडी, so anything from where the water should not enter in your nose, that's the only way to prevent it. ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं डेफिनेटली जो हमारे लिसनर्स हैं उनके लिए भी यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंशन की तरफ जाना चाहिए। और मैम दूसरा ये कि जो डायग्नोसिस होगा इस स्पेशली हमने निगलेरिया का करना हो तो उसके लिए कौन से रैपिड टेस्ट होंगे जो हम करवा सकते हैं जाके? उसमें देखें सब जो मोस्ट इफेक्टिव वे है वो तो CSF एग्जामिनेशन है अंदर, बिकॉज आपको अमीबा जो है CSF के अंदर मिलेगा। सो ब्लड में नहीं आपको इतना नजर आएगा। CSF जब आप लंबर पंक्चर करके CSF लेंगे और उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे, मैं भी एक इंटरव्यू सुन रही थी आप लोगों की उसके लिए, तो उसमें उस खातून ने जिसने डिटेक्ट किया था, ये US की बात बता रही हूँ, तो उसने पहले सिर्फ एग्जामिनेशन किया और उसको सिर्फ मूवमेंट नजर आई थी, उसको वो वायरस अमीबा नजर नहीं आया था क्योंकि उसके लिए स्पेशल स्टेन्स चाहिए। तो उसने कहा कि मुझे इतना पता था कि देयर इज सम काइंड ऑफ मूवमेंट गोइंग ऑन इन दिस CSF सैंपल। माइक्रोस्कोप में तो पता चल जाता है ना कि चीजें मूव हो रही हैं कहीं इधर। तो उसने उस मूवमेंट की बेस के ऊपर जब उसको स्पेशली स्टेन किया तो पता चला कि इट वाज, सो दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड CSF एग्जामिनेशन एंड डिटेक्टिंग द अमीबा इनसाइड इट। क्योंकि CT स्कैन MRI तो वो होगा क्योंकि उसको ऑल द केसेस ऑफ MRI इज बेटर देन CT के, उसमें आपको इफ देयर आर अदर हाई प्रेशर है ब्रेन में या कोई और चीजें आपको वो गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा, बट इट कैन नॉट टेल यू दैट कि ये प्राइमरी मेबिक मेनिंगोइंसेफेलाइटिस है और सिंपल मेनिंगोइंसेफेलाइटिस है थ्रू वायरस और अदर। तो CSF में अंडर माइक्रोस्कोप examining the amoeba in that is the gold standard. Okay, okay. Thank you so much, ma'am. Haris, any other questions you have in mind? यस मैम, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा डेफिनेटली कि व्हाट इज द करंट रिसर्च, अगर आप कुछ हमें बताना चाहें कि आप दुनिया लाइक निगलेरिया पे आप क्या लेटेस्ट रिसर्च चल रही है, और कुछ आप इस पर हमें बताना चाहेंगी? उसमें मैं जो देख रही थी उन्होंने कोई एक नई मेडिसिन मिल्टोफोसिन का जिक्र कर रहे थे, लेकिन एग्जैक्टली क्या इस तरह, क्योंकि मोस्टली अभी जो जितनी भी बातें हो रही थी मैं देख रही थी तो इंटरेस्टिंगली इंडिया में
इंडिया और पाकिस्तान के एरिया में रिसेंटली डिटेक्ट हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। करेला करेला लाइक इंडिया के अंदर और पाकिस्तान में कराची और लाहौर में भी शायद एक केस हुआ है। तो रिसर्च इन टर्म ऑफ ये शायद मैं आपको बेहतर आइडिया वो नहीं दे सकूं, लेकिन इसमें रिसर्च एग्जैक्टली क्योंकि ये इस तरह की चीज है जिसके लिए मेडिकेशन भी मौजूद है, लेकिन इट इटसेल्फ इज सच अ फेटल डिजीज कि उसमें बहुत ज्यादा चीजें वंस पर्सन गेट्स इन्फेक्टेड it's all about how we manage it. And but still, as I said, in the best center in the world, इसकी mortality 95% से ऊपर है. So So research in term of you can say Okay. the diagnosis, and you can say in term of treatment which is there, but इस तरह की कोई नई इस तरह की ड्रग नहीं आएगी जो दे और वो खत्म या हो जाए फौरन, जिस तरह हम हमारे बाकी अमीबिक डिसेंट्री और अमीबिक दूसरे जो डायरिया जो होता है उसके तो मेट्रोनिडाजोल और उसमें वो ये रोल है, पर इसमें उसका रोल नहीं है। लेकिन अगर मुझे कोई नजर आई और आपको मैं आपको सेंड कर दूंगी। मैंने आपको बताया कि आई ओपन द बॉक्स जस्ट फॉर यू गाइस बिकॉज आई नेवर सा अ केस ऑफ दिस केस, नॉट इवन इन कनाडा। thank you so much, मैं ma'am. अगर आपने अपने मैम उसमें फाइनल ये गो हेड। नहीं नहीं, मैं बताएं, आपको भी कह रही थी, कंटिन्यू नो मैं आई एम लुकिंग फॉर यस सम मैम आर्टिकल अगर मैं कोई देख सकूं। प्लीज। आपने जो बात करनी है आप बात करो। आई अच्छा, एम लिसनिंग। तो मैम मोस्टली तो हम इसके बारे में काफ़ी हद तक बात कर चुके हैं, और ये भी कि कोविड से हमें उस तरह डरने की ज़रूरत भी नहीं है। तो गवर्नमेंट के लिए क्या आप एडवाइस करेंगे? मतलब ये तो सारी पर्सनल हमारी जो प्रिवेंशन है कि हम उस तरह स्विम ना करें, पानी का उस तरह यूज़ करें, बट व्हाट वुड से व्हाट शुड गवर्नमेंट डू अबाउट दिस? नो गवर्नमेंट की तो ज्यादा इस पे जिम्मेदारी है, पर्सनल लेवल पे तो है ही है, लेकिन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी इसमें बहुत ज्यादा है कि जहां से भी पानी सप्लाई हो रहा है सिटीज को, एरियाज को, उसकी प्रॉपर क्लोरिनेशन हो, उसको चेक करने वाला कोई हो कि वाकई में वहां पे क्लोरिनेशन हो रही है। क्योंकि देखिए इसका ना मैं पढ़ी थी कि शायद उसमें सैंपल्स लेके आप डिटेक्ट तो कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेट ट्रीटमेंट अगर आप इस पे टाइम लगाओ कि हम वहां से सैंपल कलेक्ट करके पहले देखें कि उसमें निगलेरिया है कि नहीं, फिर हम कुछ करेंगे, तो दैट इज नॉट द राइट चॉइस। बिकॉज इवन इधर जब मैं पढ़ी थी सीडीसी में भी लिखा है कि सैम्पलिंग एंड डिटेक्टिंग इज नॉट एज यूजफुल एज जस्ट डिसइंफेक्टिंग द वाटर। तो जहां जहां से सिटी को सप्लाई आ रही है उस सारे वाटर को प्रॉपरली डिसइंफेक्ट किया जाए क्लोरिनेशन के थ्रू। जो स्विमिंग पूल्स यूज हो रहे हैं उनमें मेक श्योर किया जाए कि वो पे जो वाटर है वो प्रॉपरली क्लोरिनेटेड है। बिकॉज द आंसर इज वेरी सिंपल टू बिकॉज इसमें जैसे कोविड में लॉट ऑफ थिंग्स वर इन द हैंड ऑफ पीपल, इधर भी है, लेकिन इसमें इस वाले के अंदर सोर्स कंट्रोल करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। नॉट ओनली दैट कि जहाँ से पानी का सप्लाई आ रहा है, फॉर एग्जांपल किसी बिल्डिंग्स में है, हाई राइज बिल्डिंग्स आप तो बहुत कराची में है, और उधर से अगर कोई टैंक है ऊपर बड़ा सा पानी का, तो सिटी की जिम्मेदारी है कि मेक श्योर करें कि इन बिल्डिंग्स के जो टैंक्स हैं वो प्रॉपरली क्लोरिनेटेड हों। और अगर इफ दे वांट टू टेक द सैंपल्स एंड चेक, that might help in understanding, but the ultimate solution is proper chlorination। और ये गवर्नमेंट के लेवल पे ही किया जा सकता है, ये इंडिविजुअल लेवल पे नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए वो मोर एंड मोर स्प्रेडिंग द इंफॉर्मेशन। बिकॉज जब लोगों को इंफॉर्मेशन स्प्रेड की जाती है तो दैट्स द बेस्ट वे ऑफ प्रिवेंटिंग द डिजीज। लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस बीमारी के बारे में बताया जाए और ये बताया जाए कि कौन किस किस तरीके से बचा जा सकता है। स्विमिंग आजकल लोग कर रहे हैं, लेकिन वही बात है कि अगर कोई केस लाहौर में हो रहा है, लाहौर में तो ये नहर में हर कोई वहां पे होता है, तो अगर उस एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो कर रहा है तो दैट इज क्वाइट डेंजरस एक्चुअली। तो उसमें जब आपके पास एक छोटा सोर्स मौजूद हो जिसको आप क्लोरिनेट नहीं कर सकते बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत सैम्पलिंग कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एविडेंसेस बहुत कम है। बहुत ज्यादा मल्टीपल सैंपल्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपने एक जगह से सैंपल लिया, यू माइट नॉट डिटेक्ट इट। आपको ह्यूज नंबर ऑफ सैंपल एट मल्टीपल साइट्स
और आपको जाके देखना पड़ेगा कि उसके टू डिक्लेयर दैट दिस प्लेस इज फ्री ऑफ निग्लेरिया, वी कैन नॉट से दैट। तो इसलिए जो बेस्ट तरीका है वो प्रिवेंशन एट द लेवल ऑफ पीपल, बट उससे बेहतर है जो घर में आपके पानी आ रहा है वो पानी इतना सेफ हो, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और थ्रू प्रॉपर क्लोरिनेशन इज द बेस्ट वे। और क्लोरिनेशन हर 2 हफ्ते के बाद आपको करनी चाहिए। और एक और चीज बता दूं, अगर आप कोई ऐसा पानी यूज कर रहे हो जो मडी है, थोड़ा सा गदला है, तो उसकी क्लोरिनेशन रेशियो डिफरेंट होती है जो कि क्लियर वाटर क्लोरिनेशन होती है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, इट मैटर्स अ लॉट। अगर आप गोली बचाने की खातिर आधी गोली डालेंगे तो that will not kill the bug. So these are the small things which government can do. Proper chlorination. Okay, Haris, any other questions? No, that is all from my side. आप बताएं। अच्छा, फाइनली मैम, सबसे बेसिक चीज़ मैं आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि हमारे जो पाकिस्तान के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, उनके लिए आप क्या स्पेशल एडवाइस और स्पेशल रिमार्क्स देना चाहेंगी? यानी स्टूडेंट्स लाइक अस एंड द कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, और जितने लोग ये अभी पॉडकास्ट वगैरह देखेंगे, स्पेशली जो स्टूडेंट्स होंगे, तो उनके लिए आपके लिए क्या स्पेशल एडवाइस होगी कि अपने करियर वाइज वो किस तरह अपने आप को ग्रो करें, और हाउ अपना जो मेन फोकस है या गोल है वो किस तरह सेट करें? क्योंकि जिस तरह एमडी कैट आने से पहले एक बच्चा कंफ्यूज होता है, तो स्टिल जब 4th ईयर फाइनल ईयर तक जाता है तो वो उसी तरह ही कंफ्यूजन का शिकार होता है जैसे एमडी कैट से पहले का था। तो व्हाट विल बी योर प्रीशियस एडवाइस? My advice to you is that सबसे पहले तो जो आपने अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, that is one thing, but try to make your goal very clear very in the beginning, क्योंकि आप by 4th year ऑलमोस्ट आप हर फील्ड से एक्सपोज हो चुके हुए होते हैं, मल्टीपल फील्ड से, अगर आप उस चीज के अंदर जाना चाहते हो तो आपने फिर अपना कैरियर उसके ऊपर बिल्ड करना होता है। जो एक चीज मैं यहाँ पे आके ना, मैं बार बार जो यहाँ से पाकिस्तान से डॉक्टर्स आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, जिसमें हमारे स्टूडेंट लैक करते हैं जो बाकी स्टूडेंट से, वो है रिसर्च। वी आर नॉट गुड विद रिसर्च। हम लोग अपने हमारी जो कंप्यूटर स्किल्स हैं, जो डॉक्टर्स की कंप्यूटर स्किल हैं, वो बहुत जरूरी होती हैं। कंप्यूटर स्किल, एक्सेल, रिसर्च, थोड़ा बहुत डाटा एनालिसिस, ये चीजें आपको आनी चाहिए। ये चीज जो है ना, यहाँ के स्टूडेंट्स में बहुत जल्दी शुरू से सिखाई जाती है, हाउ टू डू डाटा एनालिसिस, हाउ टू यूज कंप्यूटर। यहाँ पे पाकिस्तान में और भी इश्यूज हैं कि सबको कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है या ये वो, तो उस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। और दूसरी चीज ये कि अगर आपने सोचा हुआ है कि आपने पाकिस्तान में प्रैक्टिस करनी है, कि आपकी जो वो पाकिस्तान में रहेगी, आपने किसी और मुल्क में जाना है, सो फॉर एग्जांपल हाउ बेनिफिट इट विल गिव इट टू मी, कि अगर मैं ये वाला पूछे, मुख्तलिफ प्रोफेसर्स को ईमेल करें। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर आपने कोई आर्टिकल देखा है जो आपकी इंटरेस्ट का, आपकी फील्ड का है, आप उसमें नाम लिखे होते हैं और इवन ईमेल्स भी मौजूद होती हैं। ट्राई टू कम्युनिकेट, ट्राई टू कीप योर सेल्फ अप टू डेट, नॉट विद इन पाकिस्तान बट आउटसाइड पाकिस्तान, के जब आप वहां से निकलें तो आपके लिए वहां पे एक्सेप्टेंस ज्यादा हो। तो जो चीज बाकी बाकी पाकिस्तान एजुकेशन इज वेरी गुड, आई मस्ट से, उसमें जो मेडिकल एजुकेशन है दैट इज वेरी गुड। द ओनली थिंग वेयर वी लैक इज डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन में हम बहुत अड्डी मारते हैं, दैट्स फॉर श्योर, आई एम टेलिंग यू। आई डोंट नो वेदर यू हैव डन सम काइंड ऑफ डाटा कलेक्शन। वो डाटा कलेक्शन प्रॉपरली और उसको रिसर्च को इस तरह लेकर आना, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे हमारे स्टूडेंट लैक करते हैं, क्योंकि मेरा एक मैंने आया कि आई ट्रेन पीपल टू, तो मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं, इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं, तो मैं जब उनसे कम्युनिकेट करती हूँ ना, तो मुझे ये चीज लैकिंग फैक्टर में लगता है जो पाकिस्तान से आते हैं, कि हमारे कंप्यूटर स्किल्स
और हमारा रिसर्च से रिलेटेड जो हमें पढ़ाया जाता है, मे बी अब कोर्स में आपके ऐड हुआ हो, आई डोंट नो, जब हम थे तो उस वक्त कुछ ज्यादा नहीं था। मैम एक्चुअली हमारे अब ना बाकायदा कोर्स में ऐड हो चुका है और हमारा रिसर्च सेल पूरा बन चुका है। तो हम्म हमारी हारिस खुद जो हमारी रिसर्च सोसाइटी है उसका पार्ट है। तो हम्म पर ईआरबी मीटिंग्स आपको पता है कि रिसर्च करने से पहले साइन ऑफ से अप्रूवल करवाना होता है ईआरबी मीटिंग से। तो हम्म 24 to 40 रिसर्चेस स्टूडेंट्स की पर ईआरबी मीटिंग्स पे रिप्रेजेंट हो रही हैं और अब तक 4 ईआरबी अच्छा, मीटिंग्स हो दैट्स गुड। तो नो, और इस तरह फिर आपको ना इस तरह के लोगों को, जैसे जुनेद से कौन कम्युनिकेट कर रहा था आप में से, आई डोंट नो। मैं कर रहा था सर से तो कम्युनिकेट। यू नो जुनेद्स बैकग्राउंड ना, तो जुनेद यस। इज वेरी गुड इन रिसर्च और ऑल दैट। तो जुनेद वाज बेसिकली वो वाला जुनेद इज वन ऑफ दोज पीपल who decided very early in his medical school that he's gonna go toward the research. So he always focused on that thing. उसने इवन मेडिकोज एड सोसाइटी में काम करते हुए भी वो ज्यादातर इन्हीं चीज, डाटा कलेक्शन और इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देता था। अब हर चीज से आप लर्न करते हो, तो दैट्स द ओनली थिंग। द अदर थिंग इज एंजॉय योर मेडिकल स्कूल, डोंट टेक इट टू मच स्ट्रेसफुली। और उसमें ये नहीं कि मेडि आई थिंक माई बेस्ट टाइम वाज ड्यूरिंग the medical school, and especially during MAS related all trips and हम लोग जितने भी वो वहाँ पे करते थे ब्लड जो अपने कैंप्स और मेडिकल कैंप्स, एंड दैट वाज द फन पार्ट ऑफ whole medical school actually. When I look back, so that is the most memorable time while we worked with the MAS. बाकी चीजें देखें, एक चीज आपको दूसरों से डिफरेंट करती है, दैट इज यू वर्क फॉर MAS एंड यू वर्क फॉर अदर। पढ़ाई तो हर कोई कर रहा है ना वहाँ पे, पढ़ने के लिए तो आए हैं वहाँ पे। तो आपको थोड़ी सी अपनी आइडेंटिटी ऐसी रखनी चाहिए कि यू लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, एंड दैट्स द बेस्ट वे। एंड इससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती कि आप दूसरों के लिए हेल्प करें। आई डोंट नो, आप लोगों ने अपना MAS का मोटो तो चेंज नहीं कर लिया, लिव वंस लिव फॉर अदर? मैम अभी भी वही इसी मोटर साथ पे कर रहे हैं। नो, आज भी वही मैं बोलते हैं। नहीं नहीं, हम लोग इसके ऊपर हमेशा, मैंने तो इतनी तकरीरें की है ना ब्लड के लिए, तो थ्रू आउट द MAS। आपको पता है जब हम लोग, मैं थी ब्लड सेक्शन इंचार्ज, हमेशा जो जब डाटा आता था ना, तो वो कहते थे कि जो कनेडियन वो रेड क्रॉस ब्लड जो एक डोनेशन भी है ना, तो वो सबसे ज्यादा बैग्स कलेक्ट करते थे हर साल। तो व्हेन आई वाज द वन, वी वर द फर्स्ट वन एक्चुअली इन होल सिटी, बोथ सिटीज, कि हमने सबसे ज्यादा ब्लड बैग्स और नंबर ऑफ डोनेशन कलेक्ट की थी इन दैट ईयर, जब मैं ब्लड सेक्शन इंचार्ज थी। इवन रेड क्रॉस और बाकी सारी जितने भी ब्लड बैंक्स हैं, सबसे ज्यादा। मैम माशाल्लाह। मैम प्राउड टू टेल यू, इवन अभी लास्ट ईयर भी हमने 919 ब्लड बैग्स टोटल कलेक्ट किए हैं मेडिकल सोसाइटी ने। एंड दिस से पहले एक साल में 2000, ये जब हमारा बैच 42 था, तो दे कलेक्टेड मोर देन 1000 बैग्स, वाओ, 1100 बैग्स ऑलमोस्ट इन वन ईयर। सो दैट्स अमेजिंग। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि इंशाल्लाह इस साल उसको भी हम क्रॉस कर लें। तो या बस। मुझे जो लगता है हमारे, मैं आई विश आई कैन डू समथिंग अबाउट इट, बट अभी तक थैलेसीमिया के ऊपर हमारी अवेयरनेस लोगों में ना, क्योंकि थैलेसीमिया इज अ प्रिवेंटेबल डिजीज, जो कि बेबी बर्थ होने से पहले प्रिवेंट की जा सकती है। उसके ऊपर जो है ना बहुत ज्यादा लेजिस्लेशन की भी जरूरत है। जैसे ईरान में शायद लेजिस्लेशन है कि हर हस्बैंड वाइफ को अपना थैलेसीमिया टेस्ट कराना पड़ता है, थैलेसीमिया माइनर के लिए, बिफोर दे गेट मैरिड एक्चुअली। इस तरह की किसी की लेजिस्लेशन के लिए, क्योंकि मैंने बहुत, इट्स आल्दो के आप हेल्प तो उनको कर रहे हो, बट दैट्स नॉट समथिंग विच विल क्योर द डिजीज। तो उसके ऊपर भी आप लोगों को काम करना चाहिए थोड़ा बहुत। आई नो यू गाइस विल बी डूइंग, माइट बी डूइंग, लेकिन ये बहुत ज्यादा अवेयरनेस की कमी है हमारी सोसाइटी में थैलेसीमिया के बारे में। डेफिनेटली मैम। मैम नेक्स्ट पॉडकास्ट आपके साथ थैलेसीमिया वाला करेंगे। मैं आल्दो, मैंने, मेरा जो नॉलेज थैलेसीमिया का है उतना ही है जो शायद आपका भी हो, क्योंकि मैंने प्लस सिर्फ वही जो बच्चों के साथ काम किया, लेकिन मुझे इस पे बड़ा होता है कि इट इज समथिंग विच वी कैन प्रिवेंट इट। यस मुझे मैम। आज तक याद है हम लोग, मैं ये, बल्कि मैं अब स्टोरीज आपको सुनाना शुरू हो गई हूँ, क्योंकि मेरे, हम लोग गए थे एक मेडिकल कैंप के ऊपर, वो जगह मुझे भूल गई है, वो जो रोहतास फोर्ट है या समथिंग,
जिसमें हम पैदल चल के वो ऊपर किले के अंदर गए थे। वहां पे रोड नहीं जाती थी, चीजें भी उठा के लेके गए थे। तो वहां मैं गई, आप यकीन करेंगे, वो बताते हैं जी हमारी फैमिली में हर बच्चा की डेथ हो जाती है। मैं जिस बच्चे के हाथ पे पेट पे हाथ रखती थी उसकी स्प्लीन इतनी बड़ी हुई थी। तो वी वर द पीपल हु लेट देम नो दैट तुम्हारे, क्योंकि वो पूरे काफी बड़ा खानदान उस छोटे से एरिया में रहता था ना, तो उनमें से कभी कोई गांव में नहीं गया था, इससे बाहर नहीं निकला, और किसी ने डायग्नोज भी नहीं उनको करके बताया कि तुम्हारे बच्चे को। तो मुझे उस वक्त पता चला कि ये तो पूरे का पूरे गांव में इतने बच्चे थैलेसीमिया के पेशेंट थे और वो उनकी डेथ हो रही थी बहुत फ्रिक्वेंटली। वो कहते हैं हमारे बच्चे इतने साल में होके मर जाते हैं। तो इट्स अ वेरी कॉमन इशू। उसमें जब मैंने उनको बताया, चीजें बताई कि इससे प्रिवेंट करने का तरीका यही है कि आप जो फैमिली मैरिजेस हैं और उसको अगर आपने करना भी है तो उससे पहले टेस्ट किया जाए, तो दीज आर वेरी प्रिवेंटेबल थिंग। पर आई कैन टॉक फॉर एवर बिकॉज मैंने 2 आवर्स उनको बताया था, लेकिन आई थिंक आई विल बी, या मेरी एक मीटिंग है जो कि अभी आई स्टिल हैव 30 मिनट्स। डेफिनेटली मैम, वैसे तो अब ये है कि जब आप जैसे पीपल आते हैं जो कितने सक्सेसफुल रहे हैं और इतना काम कर रहे हैं, तो हमारे क्वेश्चंस तो इंटरेस्ट सारी बात है, तो ख़त्म ही नहीं होते क्वेश्चंस हमारे। बट ये है कि डेफिनेटली आपने भी अपना टाइम निकाला है, आई थिंक आपने लंच भी करना है, हमारी वजह से हमने शायद लंच भी रोका हुआ है। तो ये है कि अब इस रिकॉर्डिंग को अब हम बंद करते हैं। नाज़रीन को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि एमएस के साथ अब ट्यून रहें टू द एमएस मेडिकल सोसाइटी चैनल, and you will receive more such amazing podcasts. Thank you so much, ma'am, and thank you so much, everyone. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड बेस्ट ऑफ लक। Thank you, ma'am.